Hello everyone. We are going to continue with the chapter Principles of Inheritance. This is the second last part of the chapter. Okay. Incomplete dominance इसमें क्या होता है कि F1 जो होता है F1 that doesn't resemble either of the two parents and is in between the two. True breeding red flower जो होगा और उसको फिर genotype ratios जो होते हैं they were exactly as we expect in any Mendelian monohybrid cross, but the phenotype ratios change हो जाते हैं. मतलब एक्चुअली ये था व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस इज कि वाई आर सम एलील्स डोमिनेंट एंड सम आर रिसेसिव. पहला इसका रीज़न ये है कि एवरी जीन कंटेन्स द इंफॉर्मेशन टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट. सेकेंड ये कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में देर आर टू कॉपीज ऑफ ईच जीन दैट इज एज अ पेयर ऑफ एलील्स. नाउ दीज टू एलील्स need not always be identical as in a heterozygote. One of them may be different due to some changes that it has undergone, which modifies the information that particular allele contains. Modified allele जो होगा that could be responsible for the production of normal or less efficient enzyme, non-functional enzyme or no enzyme at all. या फिर तो less efficient बने और या फिर normal भी बने और non-functional भी बन सकता है और एक होता है कि enzyme ही ना बने. ठीक है. The phenotype of the trait will only be dependent on the functioning of the unmodified allele. The phenotype of the trait will only be dependent on the functioning of the unmodified allele. The unmodified functioning allele, which represents the original phenotype, is the dominant allele, that is the wild type, and the modified allele is generally the recessive type. अब सुनो, जैसे कि मैंने रेड और वाइट का हमने क्रॉस करवाया, उसमें फिर हमने F1 जनरेशन सारी की सारी पिंक बनती है और फिर उसमें हमने मेल और फीमेल की गेमीट्स कर लिए. इस तरह से 1:2:1 जो है फिनोटिपिक रेशियो आता है. जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1. जीनोटिपिक रेशियो वही है जो कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में था मेंडल के, पर जो फिनोटिपिक रेशियो है वो 3:1 से 1:2:1 हो गया. ये क्यों हुआ? क्योंकि 1 रेड 2 पिंक एंड 1 वाइट हैज़ कम. ये एग्जाम्पल है स्नैपड्रैगन में. स्नैपड्रैगन एक मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जो एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है दैट इज ऑफ स्नैपड्रैगन, डॉग्सफ्लावर प्लांट, एंटेरहाइनम मेजस. ठीक है. को डोमिनेंस में मैं बात करूँ तो फिर इन केस ऑफ को डोमिनेंस द F1 जनरेशन रिजेंबल्स बोथ द पेरेंट्स. Different types of red blood cells that determine ABO blood grouping in human beings. ABO blood groups are controlled by the gene capital I. The plasma membrane of the RBCs has the sugar polymers that protrude from its surface, and the kind of sugar is controlled by the gene. The gene I, capital I, has 3 alleles: IA, IB, and chota I. I mean small I. And the alleles IA and IB, they produce a slightly different form of sugar, while the allele small I, that does not produce any sugar. Because the humans are diploid organism, each person possesses any 2 of the 3 I gene alleles. IA, IB, they are present together, so both express their own types of sugars, and this is known as codominance. 6 different combinations of these 3 alleles that are possible, and therefore a total of 6 different genotypes of the human ABO blood groups is possible. 4 phenotypes and 6 genotypes. ये जो टेबल है काफ़ी ईजी है. 4 टाइप के फिनोटाइप्स हैं A, B, AB एंड O, और 6 टाइप के जीनोटाइप्स हो गए. ठीक. ओके. ये जो था ना ये वाला पार्ट कि शुगर कौन बना रहा है, कैसा टाइप का बना रहा है, छोटा आई वाला तो बना ही नहीं रहा है, ये क्वेश्चन में आया था स्टेटमेंट्स में कि कौन से करेक्ट और कौन से गलत है. ABO blood grouping also provides a good example of multiple allelism. 3 alleles governing the same character. A single gene product may produce more than one effect, starch synthesis in pea seeds. तो उसमें क्या होता है मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ. जो स्टार्च सिंथेसिस होती है पी सीड्स में, तो उसमें कैपिटल बी है, स्मॉल बी एंड कैपिटल बी स्मॉल बी. तो अ सिंगल जीन प्रोडक्ट मे प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट. जैसे कि देखो पी सीड्स होते हैं उनमें स्टार्च का सिंथेसिस, जैसे कि कैपिटल बी है उसमें स्टार्च का सिंथेसिस इफेक्टिव है. लार्ज साइज़ के जो है स्टार्च ग्रेन्स होते हैं, राउंड सीड्स होते हैं. जो स्मॉल बी उसमें लेस एफिशिएंट स्टार्च सिंथेसिस हो रहा है और काफ़ी छोटे स्टार्च ग्रेन्स हैं, रिंकल्ड सीड्स हैं. और जो कैपिटल बी स्मॉल बी है उसमें राउंड सीड्स तो हैं, पर स्टार्च ग्रेन जो है वो इंटरमीडिएट साइज़ का है. ठीक है. heterozygotes produce round seeds, and so capital B seems to be dominant allele, but
the starch grains produced by the, are intermediate in capital B small b. So if the starch grain size is considered as the phenotype, then from this angle alleles they show incomplete dominance. ठीक है, therefore dominance is not an autonomous feature of a gene or the product that it has information for. It depends as much on the gene product and production of a particular phenotype from this product as it does on the particular phenotype that we choose to examine. In case more than one phenotype is influenced by the same gene. अब हम बात करते हैं दो जीन्स के इनहेरिटेंस को, मतलब डायहाइब्रिड क्रॉस को. इसमें हम येलो कलर्ड राउंड सीड्स, राउंड शेप सीड्स लेते हैं और रिंकल्ड और वाइट ग्रीन कलर की सीड्स लेते हैं. ठीक है, अब देखो इसमें जो पनेट स्क्वायर बना हुआ है पेज 79 NCERT में, तो उसमें राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, फिर हमने इसके गेमीट्स बनाए और फिर F1 जनरेशन बन गई राउंड येलो की, फिर हमने इसकी सेल्फिंग कराई, तो 16 हमारे को ऑफ स्प्रिंग्स मिलते हैं. इसमें से जो रेशियो बनता है 9:3:3:1 का बनता है. 9 इज़ फॉर राउंड येलो, 3 इज़ फॉर राउंड ग्रीन, another 3 is for wrinkled yellow, and the fourth one, that is the green and wrinkled 1. इस तरीके से ये फिनोटिपिक रेशियो आता है 9:3:3:1 का. ठीक है, these are the results of dihybrid cross when the two parents differed in two pairs of contrasting traits, seed color and seed shape. 3/4 of the F2 plants they have yellow seeds and 1/4 have the green seeds. Actually ये आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस से देख सकते हो. एक तरीके से ना डायहाइब्रिड क्रॉस इज जस्ट 2 मोनोहाइब्रिड क्रॉस हैपनिंग एट द सेम टाइम, बस. ठीक है, इसी वजह से जो 9:3:3:1 आया है ना रेशियो, वो भी कैसे आया है, 3:1 जनरली होता है फिनोटिपिक रेशियो इन केस ऑफ मोनोहाइब्रिड, और 2 मोनोहाइब्रिड है, तो आप क्या करो उसको स्क्वायर कर लो या उसको उसी से ही मल्टीप्लाई कर लो, तो 9:3:3:1 आ जाता है. ठीक है, law of independent assortment. ये dihybrid cross is cross between plants that are differing in 2 traits. तो 3:1, 3:1 वही अभी जो मल्टीप्लाई करके बताया वो. So Mendel proposed a second set of generalizations that we call a Mendel law of independent assortment. So this law states that when 2 pairs of traits that are combined in a hybrid, segregation of one pair of characters is independent of the other pair of characters. Simple. 4 types of pollens and 4 types of eggs बनेंगे. Capital R, capital Y, capital R, small y, small r, capital Y, and small r, small y. 25%, 1/4 of the total gametes produced. इन मतलब 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 ऐसे इन सब की फ्रीक्वेंसी होगी. ठीक है, अब जैसे कि बहुत अगर हम सोचें 9:3:3:1 आया था, तो 9 जो है वो राउंड और येलो है. अब राउंड और येलो में भी 1:2:4 का रेशियो रहता है. 1 इज़ फॉर एकदम कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, और जो 4 है वो है कि कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, और बीच में जो आते हैं ना क्या कि कैपिटल आर, बड़ा वाई, छोटा वाई, और कैपिटल आर, स्मॉल आर, वाई, बड़ा वाई, बड़ा वाई. तो इस तरीके से 1:2:4 आता है इसका रेशो. और 3:3:1 3 वाले में जो है वो 1:2 का रहता है कि 1 इज़ फॉर क्योंकि ये क्या था, आर, कैपिटल आर और स्मॉल वाई, मतलब कि राउंड और रिंग वो है ग्रीन, तो राउंड तो मतलब आर भी हो सकता है, मतलब कि कैपिटल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर हो सकता है. जो स्मॉल आर में भी आता है तो वो 2 होते हैं. ठीक है, वैसे ही गोज़ फॉर द अदर 3 एंड 1, तो सबको पता ही है. ठीक है, मतलब मैंने इस तरीके से बनाई. यू कैन हैव अ व्यू ऑफ दिस. सो या इट्स डन. अब हम नेक्स्ट लेक्चर, सॉरी नॉट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका लास्ट सेगमेंट कंप्लीट कर लेंगे. बाय.